This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. All's well that ends well. इसमें पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के भी है कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। ये जरूर हमने किया कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है। These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia, and it is not China. और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, even the West has not been able to do it. So it has created shock waves all over the world, and so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. China is totally mapped till Lhasa और उसके beyond. The Chinese don't even try. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी problem with the Pakistani military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they fought. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. But they think they're smart. ये छोटा सा वीडियो, पाकिस्तान एक ऐसी स्टूपिड कंट्री है, एक बेवकूफ़ कंट्री है, मतलब इनसे बड़े जाहिल लोग मैंने सीरियसली नहीं देखे हैं, जो कि इस जो क्लैश के बाद अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिया कितना मेच्योर कंट्री है, कितना एक सेंसिबल, कितनी प्रोफेशनल आर्मी है, जो प्रूफ के साथ सारे सबूत देती है, वीडियो प्रूफ देती है, और पाकिस्तान आर्मी प्रूफ के तौर पर लाती है। आज तक का वो वीडियो जिसमें आज तक की एंकर बता रही कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए, बट वो पाकिस्तानी एयरबेस को ना समझकर उनको इंडियन एयरबेस एडिट करके बताते हैं कि ये इंडियन मीडिया इंडियन एयरबेस के बारे में बात कर रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी पत्रकारी खुद एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। Take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Pakistan then responded with their own press conference, which was ridiculed. He held a dramatic press conference claiming they'd hit targets inside India, from Sirsa to Delhi. Total copycat of the Indian army style. But guess what? Zero proof, no videos, no footage, nothing. What are they, a circus act? And to make matters worse, Pakistan is still using social media as a primary source in their official briefings. This commentator confirmed this, saying, "I kid you not, everyone in India tune into the Pakistan Army DGISPR's press conference. It's absolutely hilarious. They're literally presenting social media clips and next videos as official evidence." The Pakistani press conference was full of clips from the media and social media instead of solid evidence from military and government sources. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। दूसरी बात यह है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है, उनके ऊपर हमने एक बहुत कड़ा प्रहार किया हुआ है। और तीसरी बात जो है, पहली बार हमने जो है अपनी जंग जो है आतंकवाद के खिलाफ, उसको एक युद्ध का दर्जा दिया है। और आपने पहले दिन के ही रेस्पॉन्स में देखा होगा कि हमने अपने जो हमले किए थे खाली JNK में रिस्ट्रिक्ट नहीं किए थे, राइट अप टू जो है गुजरात बॉर्डर तक हमने अपने हमले को फैलाया था। अगले दिन उसी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। नेवी जो थी इन स्टैंड बाई थी। नेवी ने पाकिस्तान के जो
मिलिट्री फोर्सेस है उनको फिक्स कर रखा था, क्योंकि अगर कुछ भी इधर होता तो नेवी जो है ओखा से लेकर के जिवानी से लेकर के ग्वादर से लेकर के कराची पोर्ट सभी को बर्बाद कर सकती है, इतनी ताकत है हमारी नेवी में। न्यूक्लियर का जहां तक सवाल है, देखिए ये जरूर हमने किया है कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। जो न्यूक्लियर ब्लफ का जो हमेशा बार बार बोलते थे ना, हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो कर देंगे, उसके एवज में हमने बड़ा कड़ा संदेश भेजा है कि भाई तुम चाहे टैक्टिकल भेजो, चाहे 5 KT भेजो, चाहे 10 KT भेजो, चाहे 15 KT भेजो, हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है कि हम लोग अपनी जो है रिस्पांस है उसको होल्ड बैक नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसा खतरा आता है। जो जब 11 की रात को, देखो हमने तो कहा था कि हमें 3 दिन लगे थे शौक-ए-नौ में, बट एक्चुअल शौक-ए-नौ वाज 3 आवर्स, 3 घंटे, जहां पे स्कार्दू से लेके नीचे रहीम यार खान, सक्कर, सबको लेके जितने उसके एयरबेस थे हर एक को ठोका है। रनवे को हिट किया, रडार सेंटर को हिट किया, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हिट किया, उनके ऑपरेशनल सेंटर को हिट किया। मतलब आप रनवे रिपेयर कर दो, ऑपरेशनल सेंटर है नहीं, ATC है नहीं, रडार है नहीं, कौन किसको हुक्म देगा। प्लस अलॉन्ग विद दैट यू टारगेटेड उनके कम्युनिकेशन ग्रिड है, एक हब पसरूर में है, एक मुल्तान के पास है, वो मुल्तान उकारा उसके पास है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, दैट वाज अ बिग हब। उसके थ्रू पूरा उनका ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल लैंड कम्युनिकेशन जाता है, वो उड़ा दिया। दैट मीन्स नो, जितने भी इनके चाइनीज एंड अमेरिकन रडार्स थे, पहले इनके पास अमेरिकन रडार्स आते थे, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचा है उसके पास, नंगा है। और ये तो पहले दिन से हम मारते चले जा रहे हैं। दैट इज हाउ योर एयरफोर्स हैड अ फ्री रन, टोटल एयर डोमिनेशन ऑफ द स्काइज, बिकॉज दे वर ब्लाइंड। ये जो पूरी सिचुएशन है फ्यूचर में कैसे डेवलप करेगी, इमरान खान का क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वक्त बताएगा। लेकिन सबसे जरूरी जो बात ये है कि इस पूरे ऑपरेशंस में इंडिया हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस वन, दैट मैसेज मस्ट गो वेरी क्लियरली कि हम लोग जो है जीत के बाहर आ रहे हैं। ये नहीं कि जो र्यूमर फैलाया जा रहा है चारों तरफ कि हमने सीज फायर नहीं करना था, फलाना ढिमकना, वो गलत है। चाइना जो है चुप हो चुका है, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि चाइना ने डोवल से बात करी, हमने डोवल ने चाइना से बात नहीं करी है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने डोवल से बात की है। और डोवल ने हालांकि बोला है कि हमारा वॉर कोई उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें, जो हमने कर दी है, एंड दैट्स इट, पीरियड। इतना ही स्टेटमेंट तो उनके बीच में भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने चाइना को भी वी हैव गिवन हिम अ मैसेज। बांग्लादेश हैज बीन गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब बांग्लादेश की स्टेटमेंट आई है कि भाई क्या सपोर्टिंग इंडिया। 5 दिन का छोड़ो आप, वो 3 घंटे में जो एयरफोर्स ने किया था ना, दैट वाज द शॉक एंड ऑ दैट यू शोड देम इन जस्ट 3 आवर्स। Everything was finished of Pakistan. These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia. And it is not China. China hatash hai. China is actually worried. Bangladesh, by the way, people may not know, Special Forces aircrafts of USA have already landed in Dhaka yesterday. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया, भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, क्या हमने ऐसे ही लड़ना है। और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे, बिलीव मी। सो द
It's a technical master stroke, by the way. Indigenous weapon systems, technical master stroke, और जो integration इंडिया ने achieve किया है, even the West has not been able to do it. So it has created shock waves all over the world. Number one. अब मोदी जी को ये लोग गले भी लगाएंगे, पहले तो लगा नहीं रहे थे, अब तो गले भी लगाएंगे, because you can't mess with India today. Now इंडिया ने जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो 4 लेवल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है. नंबर 1 इज L-70 गन, फिर Zuk 23, फिर उसके बाद है आपका आकाश, उसके बाद है आपका बराकेट, देन आकाश, एंड देन यू हैव S-400. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है, सीरियसली वो 3 दिन का सीज फायर ना होता, कहीं 5-6 दिन और चलता, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे चली जाती. इनके हथियार सारे खत्म हो जाते. जितने फाइटर जेट हैं सारे, मुझे लगता है वो एयरबेस पे हमला होता है तो फिर जहाँ फाइटर जेट रखे हो सकते हैं वहाँ पर भी ब्रह्मोस जा सकता है. भारत का भी नुकसान होता है. ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर कंट्री युद्ध कर रहे हैं तो भारत के नुकसान ना हो. हमारे अगर हम गोला बारूद यूज़ करेंगे तो वो नुकसान होगा, गोला बारूद मतलब हम फेंकेंगे तो वो नुकसान होगा. फाइटर जेट जाएंगे तो वहाँ के भी जो डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली चाइना के, तो कुछ ना कुछ तो वो भी नुकसान पहुँचाएंगे. ऐसा नहीं हमारे फौजी मरेंगे, वहाँ के फौजी मरेंगे, यहाँ के आम नागरिक मरेंगे, वहाँ के भी आम नागरिक मरेंगे. बट लिटरली इंडिया इतना इस बार एग्रेसिव था कि मतलब यार रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर तुम ड्रोन उड़ा के वहाँ का पवेलियन का जो पिछला हिस्सा है वो तोड़ रहे हो, कि ये मैसेज दे रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं. पाकिस्तान के लोग भले ही ये सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको भी पता है कि ये बिल्कुल पागलपन है, चूतियापा है सेलिब्रेट करना ये जीत. और ये जीत सेलिब्रेट करना सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि यार क्या आप कर सकते हो यार. आप लोग को हंसी आएगी इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखकर. इनके सोशल मीडिया पर ये लोग अभी बहुत लंबे समय तक क्लेम कर रहे थे कि इनके पास एक फीमेल पायलट है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ निकली. अब ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, इन लोगों ने बेंगलोर पोर्ट उड़ा दिया. मतलब सोशल मीडिया वॉरियर ये इन लोग, क्या बोल सकते हो, बेंगलोर में कोई पोर्ट ही नहीं है. इस तरीके की इन्होंने चीज़ें की. सीरियस नोट ये है कि हमारा एक जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा चूतिया है. सीरियसली देखो, सेंसिबल व्यक्ति का इलाज हो सकता है, बट चूतिया का क्या इलाज हो सकता है. आपने बोला ना कि आपका कोई दोस्त चूतिया हो, चूतिया ही है वो, तो उसका क्या इलाज कर सकते हो. वो पागल ही है, वो चूतिया है, तो क्या कर सकते हो. मतलब आप समझ रहे हो, उसके साथ ट्रेजेडी भी हो जाए और वो पागलपन में मस्करी कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हो. तो सीरियसली ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं. हालांकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें उठाई जा रही हैं पाकिस्तानी फौजियों की. बड़े पाकिस्तानी नंबर में फौजी मारे इंडियन आर्मी ने. खुद बताया कि भाई हमने तो हिट किए टारगेट, 50-40 इतने फौजी तो मरे होंगे. और ये क्यों मरे, इंडियन आर्मी ने भी बड़ा जवाब दिया कि ये लोग क्यों आ रहे थे प्रोटेक्ट करने आतंकवादियों को. हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आ गए. तो ये आ गए बीच में. इंडियन आर्मी ने सीरियसली ये वॉर बिल्कुल मतलब, और इंडियन आर्मी का कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो. BSF के जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस लड़ाई में नहीं थी. वो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या आपको पता है, इस लड़ाई में बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का काम था. और हमारे जो मतलब नेवी भी इसमें नहीं आई थी, बट वो रेडी थी. तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आसानी से इंडियन आर्मी इस बार पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर रही थी. ये सीज़ फायर और ये सीज़ फायर वाली नौटंकी मुझे पची नहीं. सीरियसली ये ट्रम्प कैसे आ गया. मतलब इंडिया के लोगों को इस बार था कि यार इस बार पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा तगड़ा बदला लेना, ये छोटे मोटे क्लैश और ये सब चीज़ें नहीं. और भले हमारा नुकसान हो, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हों, बट इस बार इनको जवाब देना, हमारे सैनिक शहीद हों या हमारे लोकल्स या हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा वॉर में, ये सब किसी ने सोचा नहीं. हमारे फाइटर जेट जाएँ, कुछ नहीं सोचा. युद्ध होगा तो फाइटर जेट, हमारा सैनिक ये सब जाएंगे युद्ध में. अगर आप उतरे तो ये सब आपको भूलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेगी. फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ही शांति आती है. क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस युद्ध के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करना शुरू करेगा या नहीं करेगा, मतलब बंद करेगा या नहीं करेगा, हमला शुरू करेगा. उनका तो कभी बंद ही नहीं हुआ. मुझे नहीं लगता है कुछ समय बाद ये लोग फिर वही चीज़ें शुरू करेंगे. पाकिस्तान के इलाज इस बार अच्छे से हो सकता था. फिर वी आर प्राउड. हमें गर्व है अपनी आर्मी पर, जिसने इस तरीके से एक्शन किया. और सीरियसली इस बार उन्होंने बताया कि भाई ना इंसान जाएगा ना कुछ करेगा, यहाँ से सीधा ड्रोन जाएगा, फाइटर जेट जाएंगे और हवा उड़ा देंगे
और एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत का जबरदस्त मतलब पाकिस्तान जो दावे कर रहा है सीरियसली यहाँ पे प्रूफ नहीं है। इन्होंने अटैक किया है तो कहाँ पे, राजौरी में, पुंछ में, जहाँ का इलाका बिल्कुल दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने बंदूक से इतने फायर किए, इतना डैमेज पहुँचाया है। और अगर ये 500 ड्रोन भेज रहे हैं तो वहाँ पे 10 ड्रोन कहीं पे आके गिर गए, तो वही हमले, बाकी